ये क्लियर है सबको पेयर प्लॉट? इज इट डन? हाँ सर। Yes, sir. Okay, so pair plot actually internally uses the bivariate distribution. Okay, so in short you can simply say that joint plot, but it is a customized joint plot because अलग अलग जगह पे different plot आ रहे हैं, and we cannot say actually joint plot, but it uses a scatter plot and a histogram. Okay, joint plot actually use करता तो वहाँ पे दो ग्राफ डेवलप्ड होते हैं, but right now it uses only a single graph to just represent a, like bivariate distributions. But now if you want to configure that, then you can just by using a different argument. 1 minute. Okay, so here we have not this one, yeah. So like this is nothing but an explanation. So now pair plot, what is the pair plot? Is just show the relationship for each pair of columns in a data frame. Okay, each pair of columns in a data set. By default it should draw a univariate distribution for each variable on diagonal axis. Univariate यहाँ पे क्यों यूज किया? Because diagonal in the sense like petal length versus petal length, दोनों में x and y coordinate में same होगा, then it just go with the univariate. तो univariate के लिए actually histogram. Okay, and for the bivariate it uses the actually univariate. For univariate it just use the histo, and for the bivariate is internally by default uses the scatter. Okay, so now अगर इसको थोड़ा सा और configure करना हो, so we can just do that by using what I did, just I load the iris data set. As we know उसके पास 5 कोने में 4 numerical और 1 categorized. Okay, now in that like pair grid, so actually इससे पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? We just use a pair plot function. Okay, now if you want to configure that, then we just use a pair grid function. Okay, so pair grid actually return an object of, जैसे मैं joint plot में हम लोग को क्या return किया था? हम लोगों ने एक joint plot नाम का function use किया था, it returns a joint grid. Okay, so here also it returns a grid function, sorry, grid object it returns, and using that you can just configure that. But before that, I want to just print a type of G. Okay, so मुझे चेक करना है कि G कौन से टाइप का है, and after that we can just apply a dir function also. उसके ऊपर dir function भी apply कर सकते हैं to just list out the list member functions. इसके अंदर जितने भी member function, because it's nothing but an object actually. Okay, it's nothing but an object. So what I did is just I load the data set. वो data set को actually हमने pair grid को दिया, not the, हमारे पास दो function, कौन से function है guys? We have a pair plot, it just plot the data but with the default configuration. Another one is a pair grid. So pair grid क्या करेगा? It returns the object of the grid, it returns the object of the pair grid. Okay, and now उसके ऊपर आप लोग कुछ configuration करना चाहते हो, then you can just do that. So we have to wait actually. Now next thing is, अगर मान लो हम लोग को object return हुआ, then right now I want to just configure only two things, that is diagonal and off diagonal. Then we have function that is map diagonal. So diagonal में मुझे KDE plot चाहिए. KDE right now you know what is the meaning of KDE. Okay, so actually KDE plot, but यहाँ पे univariate है diagonal पे. And off diagonal पे भी मुझे KDE plot चाहिए, but C map in the sense circular map. I know I want a blues underscore D. So what is that blues underscore D? तो guys वो beware palette को याद करो. color palette में हमने beware palettes कुछ देखा था, जिसमें set 3, set 1, set 2 in the sense same thing is there. तो यहाँ पे blues underscore D actually उसके अंदर से एक कोई set का नाम है, उसके अंदर से कोई set in the sense what? It's a like a group of colors. Okay, and n underscore levels is 6 in the sense 6 different colors I want to use. 6 different colors I want to use. In the sense n की value 6 ली है. So now just check what is the return type. It's a return type, it's a pair grid. Return value is nothing but a pair grid. Okay, and this is the by default value. So this is this return a grid. But इसके अंदर प्लॉटिंग क्या करना है? तो हम लोगों ने कुछ भी प्लॉट नहीं किया, बट कितने बाय कितने का ग्रिड रिटर्न हुआ? इट रिटर्न्स a 4x4 grid. Okay, why 4x4 grid? Because we have only 4 numerical columns inside that. Okay, now inside that, now I want to plot the data. So we have two functions. Either you can just use a pair plot, which by default uses the default configuration, and another one is pair grid. Okay, so pair grid को खुद से हम manage कर सकते हैं. So मेरे पास अभी दो ही चीज़ है, एक तो diagonal and off diagonal. अगर आप list of functions चाहिए तो you can just list out all these things. मैं इसी से आपको nature बता रहा हूँ कि इसके पास किस टाइप की functionalities है. लेकिन now that's up to you कि आप किस हिसाब से data plot करना चाहते हो. So that is something about the pair plots. Okay, that is something about the pair plots. I hope that is clear. Now another thing is, if I have categorized data, then what to do?
इफ आई हैव अ कैटेगराइज्ड डेटा देन व्हाट टू डू। इससे पहले हमने सबसे पहला काम काज किया था, हमने लाइक सबसे पहले स्कीमा डिस्कस किया। स्कीमा इन द सेंस व्हाट राइट नाउ इट्स नॉट कंसीडर्ड एज अ स्कीमा बट उसके स्टाइल्स एंड एस्थेटिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया। देन कलर पैलेट्स भी डिस्कस्ड। आफ्टर द कलर पीरियड हम लोगों ने स्टार्ट किया था आई हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, कंसीडर यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएंट टाइप ऑफ डेटा। सो यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएंट हमने डिस्कस किया, मतलब लिस्ट प्लॉट एंड जॉइंट प्लॉट। After we consider if I have a data frame in short bulk of columns I have and I want कि automatically वो relationship खुद से generate कर ले, okay, उनका relation खुद से generate करता है, I want that type of thing। Then we have a pair plot or pair grid function भी है। Okay, so guys देखो यहाँ पे भी KDE plot है, यहाँ पे भी KDE plot है, इन शॉर्ट सब कुछ KDE plot है, बट यहाँ जो KDE plot है, जो फर्स्ट वाला KDE plot है, जो अपने diagonal की बात कर रहा हूँ, so यहाँ univariate था, so it's just a draw and hist type of thing। Okay, in short that's sorry not the hist actually, वो KD है but it's a like अगर histogram अगर मैं यहाँ लूँ तो यहाँ पे histogram इसके अंदर pillars type बन जाएंगे। Okay, so that's a KDE, this is a KDE for univariate and off diagonal it's a KDE for bivariate। Okay, that's a KDE for bivariate, is it clear? And हम लोगों ने कौन सा color combination use किया वो आप लोग को यहाँ पे mention किया हुआ है, we just use actually blues underscore D। I hope that is clear to everyone। ओके, अब जैसे यहाँ पे आप उसका विथ पास करना चाहते हो कि मुझे KDE प्लॉट में एक्चुअली विथ चाहिए लाइक LW इक्वल्स टू समथिंग एंड लाइक दैट, सो वो सब कन्फिग्रेशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग द हेल्प फंक्शन, यू कैन जस्ट गेट द डिटेल ऑफ दैट। सो दैट इज समथिंग अबाउट द पेयर प्लॉट एंड पेयर ग्रिड। नाउ अनदर थिंग इज एक्चुअली a categorized plotting। Okay, another thing is nothing but a categorized thing। So actually guys we have 6 different varieties of functions which is just used to plot the categorized data। The first one actually इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। Okay, seaborne categorical plots are of 3 types। The first one is a swamp plot and strip plot, another one is box plot and violin plot, and another one is bar plot and point plot। तो इनको once again 3 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया? So all of these 6 functions are just used to plot the categorized data, but 3 कैटेगरी क्यों डिवाइड की? उसको भी once again 3 अलग अलग पोर्शन में क्यों डिवाइड किया? सो लाइक प्लॉटिंग के हिसाब से जैसे काफ़ी सारे फंक्शंस के अंदर इनबिल्ट स्टैटिस्टिक एल्गोरिदम होते हैं, इन शॉर्ट इट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दैट डेटा। ओके, वो इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक चीज़ वो हो गई। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो लाइक those that show each observation at each level and a categorical variable, that's a swarm plot and a strip plot। इन शॉर्ट जहाँ जहाँ वैल्यू होगी, जितने भी ऑब्जर्वेशन इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से कि जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उन सबको नॉर्मली एज ए पॉइंट प्लॉट कर देंगे, स्वाम प्लॉट और स्ट्रिप प्लॉट। एंड व्हाट अबाउट द अनदर थिंग, दोज दैट शो एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। सो देखो यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन को प्लॉट कर रहा है एंड हियर इट जस्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो एक बार ये जब रन करेंगे तभी पता चलेगा हाउ इट वर्क्स। एंड व्हाट अबाउट द बार प्लॉट एंड एक्चुअली अ पॉइंट प्लॉट, so those that apply a statistical estimation of show a measure of central tendency and confidence interval। Okay, so this all having some different like back end algorithms कि हर एक के पास कुछ ना कोई चीज़ है, like कोई ना कोई उसके पास back end में कुछ functionality यूज़ हो रही है to just plot the data। So in short plotting is just used to visualize your data, but उसमें मुझे कुछ algorithms भी apply करते हैं। Okay, so categorize in the sense like let I just say I have a Virat Kohli's data, or I have actually Sachin Tendulkar's data, I have Mahendra Singh Dhoni's data, so I have 3 different guys। Okay, so that is considered that's a category, और उनके डेटा मुझे ड्रॉ करना है with like different range, like 1 to 10 में विराट कोहली कब आउटपुट हुए, like 10 to 50 में कब आउट हुए हैं, एंड नॉट आउटपुट दैट इज आउट, वो कब आउट हुए, एंड 50 to 100 के टाइम 100 रन के बीच में कब आउट हुए, 100 के ऊपर उनका कितना मतलब कितने टाइम्स उनका स्कोर गया हुआ है। So I want to just put the observations, मुझे सिर्फ वो डेटा प्लॉट करना है। Then guys you can either you can use a swarm plot or a strip plot you can use। Okay, but मुझे उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना था। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस व्हाट आई वांट टू जस्ट चेक ओके कि सर लाइक विराट कोहली की मेरे पास 100 मैचेस का अगर मेरे पास स्कोर है, 100 डिफरेंट मैचेस का मेरे पास स्कोर है, देन आई वांट टू चेक कि लाइक 0 to 25% मतलब मुझे उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, मिड वैल्यू मतलब आपको बताया था मैंने बॉक्स प्लॉट के टाइम पे what is the meaning of mid value, first quartile क्या है, second quartile क्या है, third quartile, we already discussed that। so उस तरह का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए then either you can just use violin plot, another one is a box plot। Because violin plot and KDE plot थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। violin plot, KDE plot actually it also show the round types of thing, in short circle type of thing is just draw, violin plot is draw the violin type of graph, in the sense आपको आउटपुट सेम दिखेगा, be careful। वायलिन प्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, KDE प्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है।
दोनों का कामकाज भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो यूनिवेरिएट बाईवेरिएंट दोनों में काम आता है, और ये एक्चुअली उसका ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो लेट वी जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल, देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। नाउ ये फेसेट ग्रिड वाला बाद में देखते हैं। नाउ इन दिस एग्जांपल व्हाट वी विल डू, लाइक फर्स्टली वी विल जस्ट लोड द डेटा सेट। तो मैंने टिप्स नाम का डेटा सेट लोड किया। ओके, टिप्स डेटा सेट आई जस्ट लोडेड एंड 1 minute. So here we use some palette and before that मुझे उसका head print करना था। So head print करने का मतलब क्या हुआ, it just print first 5 rows it will just print. So category 1.py, so हम लोगों ने एक data set load किया, that's a tips. So मुझे चेक करना था कि उसके अंदर कितने columns हैं। Okay, and I want to plot only numerical type of thing. तो category में actually categorized data भी plot होगा। कौन सी चीज़ें यहाँ पे plot होगी guys? जब आप कैटेगरी को प्लॉट करते हो तो न्यूमेरिकल और कैटेगराइज कौन सा डेटा प्लॉट होगा? यस, एनीवन? सो हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव टोटल बिल, टिप्स, सेक्स, मॉकर, डेट, टाइम एंड साइज। सो हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव? कितने कॉलम्स हैं? वी हैव 7 कॉलम्स है ना, हमारे पास 7 कॉलम्स है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूँ, इफ आई जस्ट यूज डिस्क्राइब, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? द एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्चुअली कितने न्यूमेरिकल कॉलम है? हाउ मेनी न्यूमेरिकल कॉलम्स वी हैव? We have total bills, Only 3. we have tips and we have size. So 3 total, like 3 numerical columns, so 4 categorized column we have. Okay, total 7 थे, तो actually ये numerical column display करेगा, इसने total column with first 5 rows data display किया। तो मैंने देखो ना palette कितने use किया, I just use only 4 palette, I just use, मैंने सिर्फ 4 palette use किए। क्यों? Because right now we want to work with the categorized data only. Okay, so अभी जैसे मैंने आपको बताया, violin plot is just used to distribute, it's just used to plot the distribution of the data, and KDA plot also just used to like display the distribution of the data. दोनों में फर्क क्या हुआ? एक categorized, एक numerical, एक categorized के लिए, एक numerical के लिए. So that's the difference. So just check here, we have only 3 columns in a describe functions output. Total we have 7. So in short, finally we have 4 categorized. 4 categorized, 3 numerical. 4 categorized column है, and these are nothing but an sex, month, day, and time. These 4 are nothing but actually categorized, and remaining 3 like total bill, tips, and size are the numerical in behavior, in nature actually. So I do not want this type of things. Now I want to just use a strip plot. Okay, और strip plot में actually guys मैं 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, day versus total bill. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने day versus total bill मतलब categorized चीज़ नहीं लिए, day in the sense what? Day in the sense that is a categorized, and total bill in the sense that's a numerical. तो इन दोनों के बीच में मुझे एक्चुअली डेटा प्लॉट करना है। तो एक मेरा कैटेगराइज्ड हुआ, सो दे विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड डिफरेंट थिंग्स आर देयर। सो मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे वो एक एक्स एक्सिस पे चाहिए। सो इन शॉर्ट वी नो दैट देयर आर टोटल 7 डेज। एंड व्हाट अबाउट दिस टोटल बिल? व्हाट अबाउट दैट टोटल बिल? तो दैट विल बी अ वाई कोऑर्डिनेट, दैट विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए कि संडे पे एक्चुअली $16.99। सो दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। मैं इसको एक्चुअली रन कर देता हूँ, तो टाइम ले, तब तक हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। संडे को दूसरा पॉइंट क्या था? दैट इज 10.34। तो संडे के कॉलम के अंदर दूसरा पॉइंट हो जाएगा मेरा 10.34। संडे पे कॉलम पे थर्ड पॉइंट होगा, दैट इज 21.01। इन शॉर्ट दैट इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास 7 डिफरेंट कॉलम है। सॉरी, मैं यहाँ पे प्लॉट को शो करना भूल गया था। ओके, 7 डिफरेंट मेरे पास रो एक्चुअली डेज है। इन शॉर्ट दैट्स अ कैटेगरी, डे वाइज डे इज actually x value. So 7 different x values we have, so 7 columns we will display. Okay, but not actually a column actually bar plot में आता है, it just represent a strip plot. Okay, now guys we have some missing data in our file. Thursday, Friday, Saturday, Sunday ये Monday, Tuesday, Wednesday का कोई डेटा ही नहीं। Monday, Tuesday, Wednesday का मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है। Just check this. So that is a Thursday, so in that I have a strip plot. This is a Friday strip plot. जैसे हम लोगों ने कोई डेटा प्लॉट किया हुआ, just check this. कि like संडे को एक वैल्यू मेरे पास थी, दैट इज 16.99, 10.33, एक्चुअली 24.59 तक गए थे। सो लेट मी जस्ट, ओके, काफ़ी बड़ा गया है संडे पे। जस्ट चेक, संडे पे बिल काफ़ी बड़ा गया है। ओके, सो जैसे 30 तक। इन शॉर्ट ये सब के सब क्या है? इट्स एन इंटरसेक्शन पॉइंट, इन शॉर्ट ऑब्जर्वेशन। तो नॉर्मली इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको प्लॉट करना है, देन यू कैन सिंपली यूज स्ट्रिप प्लॉट। ओके, यू कैन सिंपली यूज अ स्ट्रिप प्लॉट। नाउ उसमें एक आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, दैट्स अ जीटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीटर, वो एक्चुअली देखते हैं, बट उससे पहले फंक्शन देख लेते हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ जो भी रखना था, वट एवर यू वांट टू प्लॉट इन वाई कोऑर्डिनेट, सो वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू रखी। नाउ डेटा इक्वल टू टिप्स, दैट मीन्स इट्स नथिंग बट अ डेटा फ्रेम। तो ये 3 चीज़ें हमने यूज़ की थी। बट नाउ इफ यू विल नॉट यूज दिस कलर पैलेट फंक्शन, देन बाय डिफॉल्ट इट विल यूज आइदर ऑफ द कलर पैलेट फंक्शन।
Okay, by default it will use either of the color palette function. So set palette, it is just used to set the color palette. We already discussed that thing. So हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के कलर पैलेट थे. The first one is categorized, sequential and divergent. Okay, तो यहाँ मुझे categorize तो फिक्स नाम में लिख सकता हूँ, as we know, even though we can just use the hash code also. So color palette अब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, because हम लोग अपलोड करना शुरू कर दिया. Now guys, observe one thing. यहाँ पे हमने jitter equals to actually false लिखा था. Jitter in the sense what to spread होगा. Spread मतलब अगर आप पुराने ग्राफ अगर आपको याद है तो यहाँ पे संडे में एक्चुअली 2 पॉइंट कोई इस तरफ थे, कोई पॉइंट इस तरफ थे, कोई पॉइंट इस तरफ थे. इन शॉर्ट जब मेरे पास अगर मैं नॉर्मली स्ट्रिप प्लॉट का यूज़ करूँ, सो स्ट्रिप प्लॉट एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहा है. ओके, तो अगर एक ही पोजीशन पे 2 पॉइंट्स है, एक ही पोजीशन पे 2 पॉइंट्स इन द सेंस मान लो संडे पे किसी का बिल एक्चुअली हुआ है नॉट ऑन द सेम वैल्यू बट नियर अबाउट. किसी का बिल हुआ है $16.01, किसी का बिल हुआ है $16.02, किसी का बिल है $16, किसी का है 16.03, 16.04, 16.05. तो एक्चुअली 16 के आसपास एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सो व्हाट इट विल डू, वो जिटर बनाता है. जिटर इन द सेंस साइड में वैल्यूज पुट कर देता है, ओवरलैप नहीं करता. बट अगर आप जिटर की वैल्यू फॉल्स करना चाहते हो, मीन्स यू वांट टू जस्ट नो कि ओके 16 पे कोई वैल्यू थी, आई डू नॉट वांट टू नो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, वहाँ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट, आई डू नॉट वांट टू काउंट दैट थिंग, आई डू नॉट वांट टू रिप्रेजेंट दैट थिंग. सो आई वांट टू जस्ट पॉइंट अ वैल्यू. मुझे सिर्फ ये चाहिए था, ठीक है भाई 16 पे 1 या 10, इट डजंट मैटर फॉर मी. ओके, तो हम लोग इससे सिर्फ इतना कैलकुलेट कर सकते हो. ऑन थर्सडे वी हैव ऑन एन एवरेज गाइज आर ऑन $8, और अगर अच्छे से देखें तो $10 से लेके $22 तक डेटा आ रहा है. अगर कंटिन्यूअस जितने यूज़र देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स 10 to 22 है. व्हाट अबाउट फ्राइडे, सो फ्राइडे में एक्चुअली 12 to 15 अदरवाइज $18 या $17 तक डेटा है. बाकी रैंडमली कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है, मतलब उस टाइप के ऑर्डर्स मिल रहे हैं हम लोग को. ऑन सैटरडे वी हैव एक्चुअली $9 टू एक्चुअली वी हैव $31 और $32 तक कंटिन्यूअस टाइप का डेटा है. ऑन संडे ऑल्सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर. तो इससे हम लोग को नेचर पता चल जाएगा कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिटर? आई होप दैट्स क्लियर. ओके, नाउ गाइज आई वांट टू ऐड वन मोर कैटेगरी. जैसे मुझे इसमें स्पोकर चाहिए, अदरवाइज संडे में मेरे पास लंच एंड डिनर 2 चीज़ थी. सो आई वांट टू ऐड वन मोर कैटेगरी. सो एज आई टोल्ड यू, हम लोग 5 डिफरेंट चीज़ें एक साथ प्लॉट कर सकते हैं. दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बाय आइदर यूजिंग ह्यू, अनदर वन इज एक्चुअली साइज एंड अनदर वन इज एक्चुअली मार्कर. तो 3 अलग अलग चीज़ से हम लोग डेटा पुट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ ह्यू यूज़ किया. सो इट इज़ जस्ट यूज टू ऐड वन मोर कैटेगरी, जिसमें मैंने जिटर का वैल्यू फॉल्स रखा है. यू कैन जस्ट ऐड द वैल्यू ऑफ जिटर. ओके, तो अब जिटर का वैल्यू ट्रू फॉल्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो. सो आई होप आप लोग को जिटर पता चला. जिटर इज जस्ट यूज टू लाइक आपको स्प्रेडेड डेटा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे स्प्रेडेड डेटा चाहिए नहीं चाहिए, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन जिटर. ओके, वो ओवर देखो, दिस इज नथिंग बट एन. ओके, यहाँ पे लाइक आपको बता रहा है लंच इज एक्चुअली रेड एंड डिनर इज एक्चुअली ग्रीन. तो यहाँ पे हम लोग को अब क्लियरली पता चल रहा है. थर्सडे में एक्चुअली ग्रीन, इन शॉर्ट डिनर में एक ही बंदा था, तो हम लोग को थर्सडे इवनिंग में छुट्टी कर देनी चाहिए, रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए. ओके, एंड व्हाट अबाउट सैटरडे एंड संडे? सैटरडे संडे में एक्चुअली इवनिंग में क्राउड आ रहा है, आफ्टरनून में इतना क्राउड नहीं है. ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर. आप लोग को डेटा किस हिसाब से विजुअलाइज करना है वो पता चल रहा है. नाउ लेट मी जस्ट गो विथ जिटर वैल्यू. सो मैं जिटर इक्वल्स टू फॉल्स की वैल्यू एक्चुअली रिमूव कर देता हूँ. नाउ इन द सेम वे आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो. इन शॉर्ट लाइक ह्यू इक्वल्स टू डे, जैसे हम लोगों ने टाइम रखा था उसकी जगह ह्यू के अंदर डी रख देते हैं, एंड वाई इज ए टोटल बिल, एंड एक्स के अंदर टाइम रख देते हैं. ओके, सो व्हाट विल हैपन, पहले ये देख लेते हैं विदाउट जिटर. सो हमने एक्चुअली अभी जो प्लॉट किया, अभी जो डेटा हमने प्लॉट किया उसमें जिटर की वैल्यू फॉल्स रखी है. जस्ट चेक द लाइन नंबर 40. एक्स इज नथिंग बट डी, वाई इज ए टोटल बिल, वाई इज ए टोटल बिल, एंड ह्यू इज एक्चुअली टाइम. सो जिटर की वैल्यू फॉल्स रखने का मतलब इट जस्ट शो द स्प्रेडेड वैल्यू. एंड गाइस यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी है. हियर वी हैव सम ओवरलैपिंग आल्सो. ओके, तो वो सर्कल तो ड्रॉ कर रहा है, और ओवरलैपिंग अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो ओवरलैप भी कर देगा. मतलब सर्कल प्रॉपरली ड्रॉ करना नहीं हुआ तो एक दूसरे के ऊपर. ओके, मतलब नियर अबाउट वैल्यूज है वो. ओके, आई होप दैट्स ऑल्सो क्लियर. नाउ फाइनली मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ करना था कि लाइक आई वांट टू यूज अ ह्यू इक्वल टू डे. नाउ लेट अस जस्ट कट इट फ्रॉम हियर. मैं सीक्वेंस नहीं तोड़ना चाहता यहाँ से. 1 मिनट है. सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. सो एक्स इज इक्वल्स टू, मैं समझाता हूँ तब तक रन कर लेते हैं. ओके, एक्स इक्वल्स टू टाइम. सो अब तक एक्स की वैल्यू डे थी, तो डे के अंदर मेरे पास 4 वैल्यू थी, एक्चुअली 7 होनी चाहिए, बट वी हैव 4 वैल्यूज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. बट अगर एक्स की वैल्यू में टाइम रख दूँ, देन आई हैव ओनली 2 वैल्यूज, देन दिस 2 वैल्यूज आर लंच एंड डिनर.
Okay, and what about the total value? What about the total value? Sorry, total bill. So it's a numerical value in y coordinate. So what about the hue? So right now I have 4 different categories in hue. So guys, actually दो strip developed होंगे because we use a strip plot. So we will have 2 strips actually, 2 strip developed होंगे और दोनों strip में actually 4 different values होगी because Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So here we have. So you can just check this. ओके सो अब देखो ये डेटा थोड़ा होचकोच जैसा लग रहा है। ओ भाई ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा डेटा क्या। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस हिसाब से प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ जो 4 वैल्यू थी तो मुझे 2 पिलर नहीं बनानी चाहिए, 2 स्ट्रिप्स डेवलप नहीं करनी चाहिए। आई हैव टू डेवलप, आई हैव टू 4 स्ट्रिप्स इन द सेंस एक्स कोऑर्डिनेट पे मुझे एक्चुअली मुझे डे रखना चाहिए था। ओके अगर आपको रिलेशन रखना हो, मतलब दोनों को अच्छे से प्लॉट करना हो। बट दिस इज ऑल्सो यूजफुल कि जनरली लंच में कितने डेटा आ रहे हैं एंड व्हाट अबाउट डिनर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ से हम लोग को वो चीज़ पता चल जाएगी। ओके सो that is just used to like visualize a categorized data. Okay, so that is something about the strip plot. But now if you want to use a swarm plot, so what is the swarm plot? The swarm plot actually it's a one type of strip plot only, वो भी observation plot करता है। But the thing is उसमें data overlap नहीं होते, so it will look like a tree type of things. Okay, एक छोटा सा tree type का कोई data display होगा। मतलब अगर मान लो लाइक संडे को 16.2 का किसी का बिल हुआ, किसी का 16.3 हुआ या किसी और का भी 16.2 हुआ, तो साइड में एक और डेटा अपलोड करेगा। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा अप डाउन, जस्ट चेक दिस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है काफ़ी कुछ अप डाउन हो रहे हैं। हाँ मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया इसको, 1 मिनट। जस्ट चेक दिस, देखो यहाँ पे थोड़ा माइनर डाउन आया। ये 4 जो रेड है 15 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, 15 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर देखो। सो ये वाला जो लाइन है इट इज़ समथिंग लाइक कंसीडर इट इज़ 15.10, सो मे बी इट इज़ 15.11, दैट इज़ 15.8, दिस इज मतलब 15.08 एंड दिस विल बी माइन लो 15.09। सो थोड़ा अप डाउन हुआ है, माइनर अप डाउन हुआ है। ओके बट हो सकता है कि कोई जगह पे वैल्यू सेम हो बट उसने ओवरलैप नहीं किया आइदर ऑफ द वैल्यू। उसने कोई भी वैल्यू देखो, ये 2 वैल्यूज देखो, जस्ट कंसिडर दिस 2 वैल्यूज। ओके मान लो ये 2 वैल्यू एक सेम है, जस्ट थिंक दिस 2, ये दोनों वैल्यू सेम है बट ओवरलैप नहीं की उन लोगों ने। व्हाई दिस डू नॉट ओवरलैप? बिकॉज वी यूज्ड स्वाम प्लॉट एक्चुअली। ओके ये सेम नहीं है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है अभी, नॉट टू मच डिफरेंट एक्चुअली, 0.00 में कुछ डिफरेंस होगा। ओके तो स्ट्रिप प्लॉट क्या करेगा? इट जस्ट like overlap the data. And what about the swarm plot? Swarm plot actually will not overlap that marker points. Okay, so that is a swarm plot, but it is also used to just plot the like observation actually. So like hue equal to day, and hue equal to day की जगह properly है कि hue equal to आप time रखिए, but it depends on you कि आप क्या data display करना चाहते हो। Now guys, the common plot is actually, अगर आप strip plot या swarm plot use ना करना चाहो, then common thing is actually a category plot. Common plot is nothing but a categorized plot. आप categorized plot में आप अपनी value as it is pass कर दीजिए। First 4 arguments are same, x, y and actually a data, x, y and actually a data, but one more argument you can pass, that is hue. Okay, hue or one more actually style or color you can just pass. तो ये arguments तो हम pass कर ही सकते हैं, at least 5 argument. But the thing is, a categorized data में अगर आपको swarm plot चाहिए, just write down kind equal to swarm or kind equal to swarm. Sorry, strip, kind equal to like kind in the sense which type of graph you want to use actually to visualize your categorized data. And finally, like we just change the value of this hue. Okay, so finally we just change the value of this hue. So आप ये भी देख सकते हो, and if you want to just print the health, it's that. So wait करते, so that is a categorized cat plot का output है। So cat plot having the same output, ठीक है, सिर्फ वाइड ग्रिड की जगह से बैकग्राउंड चेंज हुआ। ओके वी कैन कन्फिगर दैट एक्चुअली, वो अपने ऊपर है, वी कैन जस्ट कन्फिगर दैट। सो इज इट डन गाइस? सो दैट इज नथिंग बट स्ट्रिप प्लॉट, स्वार्म प्लॉट एंड कैट प्लॉट। सो आउटपुट के लिए हेल्प करते हैं, हेल्प फंक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे। So help in the bracket sns dot swarm plot, so you will just get the like keyword arguments, कौन से जैसे x, y we just use. So here we have, firstly we use x, then y, and आगे स्टार लिखने का मतलब पीछे जितने भी arguments all are nothing but in keyword arguments. Okay, so x and y, then hue is there or data is there. Order in the sense ascending descending order आप कुछ भी use कर सकते हो। by default order क्या होगा, जिस sequence में आप data put करोगे। So ये order किसके ऊपर apply होगा? This order will be applicable on x coordinates actually. Okay, because x के अंदर categorized data। hue order also you can just set, अगर आपने hue की value set की है।
Okay, color also you can just pass, orientation you can just set, width, AX, and etc. etc. thing you can just use over here. So I hope that's clear, guys. So that is nothing but in categorized data. Okay, and color palette you can just manage and etc. thing. So that is something about the categorized plotting. But हम लोगों ने सिर्फ दो चीजें cover की, that is a swamp plot and another one is a strip plot. So here we have actually swamp plot and a strip plot we have. Okay, so that's the thing. Okay, in the next way, in the next session we will just